Hello everyone, welcome to the session on arithmetic progression part 05। आज के सेशन में हम पिछले सेशन में दिए गए आपके होमवर्क क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आज की क्लास के एंड में मैं आपको कुछ दो होमवर्क क्वेश्चन और दूंगा। आपको करना क्या चाहिए, पूरी क्लास को डिटेल में देखिए, पूरी क्लास देखिए और उसके बाद जो मैं आपको दो क्वेश्चन दूंगा उनको सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट में लिखिए। I will cover complete arithmetic progression, geometric progression, harmonic and related question on these part in YouTube channel। इस YouTube चैनल पे मैं सारा कुछ कवर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 05। मैंने जो लास्ट क्लास में आपको दो होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, आज उनको डिस्कस करते हैं। तो आज का क्लास का जो ये होमवर्क क्वेश्चन 1 है, ये लास्ट क्लास की एंड में मैंने होमवर्क दिया था। अब ये जो क्वेश्चन है, ये नंबर ऑफ सैपलिंग को हमने एक लाइन से लगाना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, A number of sapling were lying at a point P by the side of a straight road. Raju planted these sapling in a straight line with a distance of 20 meter between consecutive sapling. The first sapling was planted 20 meter from P and all the sapling were planted on the same side of P. Raju carried only one sapling at a time and returned to P after planting each sapling, including the last one. If he traveled a total distance of 2.2 kilometer, find the number of sapling that he planted. Concept क्या है? Let's say this is the point P and he start putting all the sapling in a straight line like this and so on. And it is also given that distance between each sapling is 20 meter. And it is also 20 meter from the starting point P. So all the sapling are planted at a distance of 20 meter and so on. And it is also given that he goes, Raju start from P, plant first sapling and then return back. Then again he will go from P to second sapling position and then return back. वो हर बार एक sapling लगा के वापस आता है, फिर अगले sapling को लेके जाता है, फिर वापस आता है and so on till the last सैपलिंग। वो लास्ट सैपलिंग लगा के भी वापस आ जाता है। तो इन दिस केस इट इज प्योर क्वेश्चन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। सो व्हाट विल डू इन दिस केस, वी विल चेक कि हाउ मेनी व्हाट आर द डिस्टेंस ही विल कवर। यहां पर गिवन है बाय डूइंग ऑल दीज सैपलिंग, बाय प्लांटिंग ऑल दीज सैपलिंग, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय राजू, total distance covered by Raju is 2.2 kilometer or we can write this as a 2200 meter because हमारे पास ये सैपलिंग की डिस्टेंस 20 मीटर दिया है। तो हम अब इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन में we will convert entire distance into meter. So total distance covered by Raju will be 2200। पहले क्या करते हैं, देखो अगर वो फर्स्ट सैपलिंग की बात करता है तो he will go 20 मीटर एंड रिटर्न बैक। 20 मीटर जाना, 20 मीटर आना, he will cover 40 मीटर। This is the total distance covered to plant first sapling. Now second sapling की बात करो, he will go P to second sapling, cover a distance of 40 meter and then return. तो total distance he will cover, it will be 80 meter. Then next sapling 20 60 जाना और 60 वापस आना, मतलब 120 and so on. Let's say there are n object, n sapling are there. So this is the total distance covered by Raju. This is total distance. This is total distance covered by Raju. अच्छा, अब आपको क्या दिख रहा होगा इस क्वेश्चन में, this is AP with common difference 40, right? Common difference 40 and A will be 40 and total number of terms will be n. So we will use formula for n terms of an AP. It is n by 2, 2 into 40
plus n minus 1 into 20, right? So this is the total distance covered by Raju. And now we can cancel this 2 and this is 10. तो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई कर दो, एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट दिस इंटायर डिस्टेंस इज 2200 मीटर. अब आप एक काम और कर सकते हो कि देखो ये एक जीरो कैंसिल हो रहा है, एक जीरो ये कैंसिल कर दो, यहां से एक जीरो, तो थोड़ा इजी कर लिया मैंने क्वेश्चन. नाउ इट विल बी n 4 प्लस n माइनस 1 इज इक्वल 220, राइट. हमने क्या किया, अच्छा यहां पर ना ये 40 होगा, दिस विल बी 40, दिस कॉमन डिफरेंस विल बी 40. तो जब हम 2 से काटेंगे 20 और एक जीरो काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, यहां पर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2, दिस विल बी n माइनस 1 2, इट इज 220, राइट. सो इट विल बी n. अच्छा अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, अंदर बचेगा 2 प्लस n माइनस 1 इज इक्वल 220. 2 से कैंसिल कर लो, दिस इज 110, तो ये जाएगा n इंटू n प्लस 1 विल बी 110. अच्छा यहां पर क्या बन गया आपका, अगर आप इसको देखोगे तो ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट हम क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करेंगे. वी विल नॉट सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक. हम क्या करेंगे यहां पर, सिंपली वी विल ट्राई टू मेक दिस राइट हैंड साइड एज प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर. देखो n और n प्लस 1 एक दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो वी विल ट्राई टू मेक दिस 110 इंटू कॉन्जिक्यूटिव नंबर. सो वी हैव n प्लस 1 एज 110. वी कैन राइट दिस इज 10 इंटू 11. नाउ कंपेयर, दिस इज स्मॉलर वैल्यू, दिस इज लार्जर वैल्यू. तो यहां पर 10 स्मॉल है, 11 लार्ज वैल्यू, तो वी कैन से n विल बी 10. So there are 10 saplings. There are 10 sapling. Answer of this question will be A option. इस क्वेश्चन का आंसर होगा A ऑप्शन. तो ये क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन. आप लोग ट्राई करा करिए क्वेश्चंस को, अपना आंसर कमेंट में लिखिया करिए. ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मैंने इस तरह के क्वेश्चन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में डिस्कस किया है. मैं आपको इस पिछली क्लास आप जरूर देख लीजिएगा, तभी आप इस कॉन्सेप्ट को आज समझ पाओगे, क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. इट सेज दैट देयर इज अ सीरीज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्राइजिंग 360 टर्म्स. In that series there are 360 terms. The 70th term, see, 70th term is 173 plus 7 by 23. This is T78, and T283 will be 427 plus 13 by 23. So we have given with 78th term, we have given with 283rd term in that series which contain 360 term. अब ये बोलता है to this series k terms are added to the beginning and another k terms are added at the end such that the entire series is still in arithmetic progression if the total number of terms in the series finally is 552. तो अगर आपने पिछली क्लास ढंग से देखी होगी, मैंने इस कॉन्सेप्ट को करीब करीब 15-20 मिनट लेकर समझाया था. तो अगर आपने पिछली क्लास ढंग से देखी है तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर लोगे. यहां पर एक बात समझनी है कि ये जो मैंने k टर्म्स ऐड की है स्टार्टिंग में, k टर्म्स ऐड की है एंड में, और टोटल टर्म बन गई है 552. तो आप यहां पर ये कर सकते हो, यू कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ k, बट आई थिंक इट इज नॉट नेसेसरी टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k, बिकॉज मैंने शुरुआत में और एंड में दोनों तरफ बराबर टर्म ऐड की है. तो इसका इफेक्ट हमें कोई नहीं फर्क पड़ेगा. हमको बस ये देख लेना है कि ये जो 283 टर्म्स बिगिनिंग से है, ये एंड से कितनी टर्म होगी. हम अगर 360 टर्म कंसीडर करते हैं तो मैंने बताया था अगर स्टार्टिंग से T283 है तो एंड से कौन सी टर्म होगी, ये एंड से इट विल बी 360 टोटल टर्म्स माइनस 283 प्लस 1. मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं rth टर्म फ्रॉम स्टार्ट, इट विल बी n माइनस r प्लस 1th टर्म फ्रॉम एंड. मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको लास्ट क्लास में समझाया था, ये कैसे वर्क करता है मैंने सब कुछ बताया था. आप लोग यहां पर इसका वैल्यू पुट करोगे तो देखो इट विल बी 360 माइनस 282 एंड इट विल बी 78. तो अब मुझे समझ में आ गया कि स्टार्टिंग से 78 टर्म इज दिस
और एंड से 78 टर्म इज दिस, तो मेरा क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अब मैंने अगर ये समझ लिया कि आउट ऑफ दीज 360 टर्म्स स्टार्टिंग से 78 टर्म इतनी है, एंड से 78 टर्म इतनी है, और अगर मैं स्टार्टिंग में के टर्म ऐड कर दूं इधर और एंड में मैं के टर्म ऐड कर दूं, तो मैं कह सकता हूं आई कैन सिंपली से कि यार स्टार्टिंग से टी के प्लस 78 टर्म होगी 173 प्लस 7 होल 23, एंड एंड से टी के प्लस 78 टर्म इट विल बी अगेन दिस 427 प्लस 13 बाई 23। तो मेरे पास स्टार्टिंग से टर्म आ गई, एंड से टर्म आ गई। सो हाउ टू कैलकुलेट सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स, तो इसका सिंपल तरीका होता है, इट इज सम ऑफ टर्म्स, n is 552, n by 2 a plus l, and we all know अगर मुझे एंड से k plus 78 टर्म मिल गई और स्टार्टिंग से मिल गई, ये स्टार्टिंग से k plus 78 टर्म, ये एंड से k plus 78 टर्म, तो यहां से हमें पता लगता है कि a plus l विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, मतलब इन दोनों का सम जो होगा मेरा वो a plus l होगा, बिकॉज वी नो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बोथ एंड आर ऑलवेज इक्वल। तो यहां से a प्लस l का मान कितना आ जाएगा, a विल बी 173 प्लस 7 बाई 23 प्लस l विल बी 427 प्लस 13 बाई 23। देखो ये कितना हो जाएगा, 173 हो जाएगा 600 प्लस 19 बाई बल्कि 20 बाई 23। अगर मैं 23 एलसीएम ले लेता हूं तो ये जाएगा 1380 प्लस 20, तो दिस सम विल बी 13820 बाई 23। दिस इज वैल्यू ऑफ a प्लस एल। तो हम सम क्या बोलेंगे, रिक्वायर्ड सम, इट विल बी n। अच्छा अब n मैं लूंगा 550, टोटल टर्म मेरे पास 552 हो गई, n विल बी 552 और फॉर्मूला हो जाएगा बाई 2, और a प्लस एल का मान मेरा इतना आ गया 13820 डिवाइडेड बाई 23। अच्छा 23 से जाएगा ये 24 टाइम्स और ये 12 टाइम्स, तो अगर मैं 12 इंटू 13820 करूंगा इट विल बी अवर आंसर विच इज 165840। मेरा आंसर हो गया सी ऑप्शन। अच्छा यहां पर ना आप आफ्टर दिस यू कैन यूज कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी और यू कैन यूज कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल सम। मैं इस चैनल पर आपको डिजिटल सम भी पढ़ा दूंगा। आफ्टर दिस स्टेप हमको जरूरत नहीं कि हम ये गुना करें, हम कुछ ऐसा जुगाड़ लगा के इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट भी ला सकते हैं। सो इन दिस केस आंसर विल बी बी ऑप्शन। तो ये मेरे लास्ट क्लास के 2 होमवर्क क्वेश्चन थे। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का नया कॉन्सेप्ट। हमने ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे और बच्चों ने इस पर आंसर भी किए हैं। आप लोग भी आगे से, जैसे मैं आज क्लास के बाद आपको एंड में आंसर दूंगा, आप लोग हमेशा उन आंसर्स को मार्क किया करो, क्योंकि आप ना कनेक्शन रहेगा, लगातार आप क्लास करते रहोगे, आप प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर दोगे तो आपको अगली क्लास करने में मजा आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग ना इस टॉपिक पर मिक्स कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आप ये ध्यान रखिएगा कि इन दिस केस कुछ फॉर्मूले जो आपको पता होने चाहिए। इन एपी nth टर्म इज गिवन बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला, एंड देन सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन बाय n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड देन n by 2 a प्लस l। याद रखिए जो फॉर्मूला हमने आपको सम के 2 फॉर्मूले लिखवाए, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन में हमको किस तरह की रिक्वायरमेंट है। हमने आज जो आपको होमवर्क क्वेश्चन कराया था उसमें पहले होमवर्क क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज हुआ, सेकंड में ये यूज हुआ। तो डिपेंडिंग अपॉन द गिवन कंडीशन, अगर हमें कहीं पर ए और एल दे दिया और नंबर ऑफ टर्म दे दिया तो हम सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे सम के लिए, और अगर कहीं पे मुझे कॉमन डिफरेंस दिया है, फर्स्ट टर्म दी है, तो मैं सेकंड फॉर्मूला, फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट। अब इस पर बेस्ड मिक्स कॉन्सेप्ट क्या क्या बन सकते हैं, चलो जरा देख लेते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इट सेज दैट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए सीरीज इज गिवन बाय n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 5, फाइंड इट्स 7th टर्म। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमको n टर्म का सम दे रखा है, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 5, इट्स 7 टर्म मुझे कैलकुलेट करनी है। मैं क्या करूंगा, मुझे गिवन है Sn इज इक्वल n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 5। तो बच्चा लोग यहां पर आप n का मान रखो 1, n का मान रखो 2,
n का मान रखो 3, राइट। तो जब मैं n का मान 1 रखूंगा तो S1 कितना आ जाएगा, ये हो गया 1 - 2 + 5, इट विल बी 4, ठीक है। जब मैं n का मान 2 रखता हूं, H2 जहां जहां n है वहां पे 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर 4 - 4 + 5, इट विल बी 5। अच्छा, अब n का मान 3 रखते हैं तो S3 विल बी 9 - 6 + 5, तो ये क्या हो गया, देखो 9 - 6 + 5 मतलब 8। अच्छा, अब यहां से आपको समझना है कि ये क्या मतलब है इस बात का। इट सिंपली सेज दैट अगर मेरे पास S1 मतलब सम ऑफ वन टर्म जो कि दिया हुआ है 4, अगर S1 4 है तो मैं कह सकता हूं सीरीज में T1 विल बी 4, T1 विल बी 4। अच्छा, अब अगर मुझे बोल रहा है S2 इज 5, S2 इज सम ऑफ टू टर्म्स मतलब पहली और दूसरी टर्म का सम, तो T2 क्या होगा, ये जो 5 मुझे दिख रहा है इस 5 में पहली टर्म और सेकंड टर्म का सम है। पहली टर्म मेरे पास 4 आ गई, तो अगर मैं 4 सब्ट्रैक्ट करूंगा 5 में से तो इट विल गिव यू सेकंड टर्म। अच्छा, उसी तरह से सम ऑफ 3 टर्म्स का मतलब 8 क्या है, ये कह रहा है सम ऑफ 1 टर्म 2 टर्म एंड 3 टर्म, तो अगर मैं सम ऑफ 2 टर्म्स इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा इट विल गिव अस T3। 8 में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों जुड़ी हुई हैं और 2 टर्म का सम मुझे 5 दिया, तो थर्ड टर्म कैसे आएगी, 8 - 5 and 3। अच्छा, एक कुछ आगे भी ले लो, अगर मैं आगे का भी थोड़ा ले लेता हूं, इफ आई कंसीडर n इज इक्वल 4, अगर मैं n को 4 कंसीडर करता हूं तो सम ऑफ 4 टर्म्स कितना आएगा, 4 × 4 = 16 - 2 × 4 = 8 + 5, तो 13 आ गया। यहां से क्या आ जाएगा बच्चा, अब आप देखो कि यहां से T4 कितना आएगा, देखो 13 में 4 टर्म का सम है और 8 में 3 टर्म का सम है, तो अगर मैं 13 से 8 घटाऊंगा ये आ जाएगा 5। तो अब आपको समझना क्या, मेरी जो सीरीज आ गई ना, जिस सीरीज का सम ये दे रखा है, मेरी सीरीज क्या आ गई, सीरीज आ गई 4 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अब यहां पर मुझे इसकी 7th टर्म पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 7 टर्म निकाल लूंगा। चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूं विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला, 4 1 3 5 7 और फिर अगला 9 और फिर 11। तो देखो दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स एंड दिस इज सेवंथ। तो मेरा आंसर हो गया 11। आप चाहो तो इसको वैसे भी कर सकते हो विदाउट राइटिंग ऑल दिस। अगर मुझे 7th टर्म पूछा तो मेरे लिए आसान हो गया, लेकिन अगर मुझसे पूछता 100 टर्म 200 टर्म तो कैसे करते, तो देखो इसका एक तरीका याद रखना। अच्छा, मैं मान लेता हूं इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है बताइए 70th टर्म क्या होगी, इसकी 70th टर्म। तो जरा ध्यान समझना, यहां पर आपको एक बात समझनी होगी। इन दिस केस मेरे पास 4 को अगर मैं छोड़ दूं, इफ आई एक्सक्लूड दिस, तो ये जो मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास एपी। आपको दिख रहा है ये एपी बन गया। तो अगर मुझे पूछ रहा है 70th टर्म, इट विल बी 69th टर्म ऑफ एपी, मतलब इस एपी की जिसका फर्स्ट टर्म 1 है। तो यहां पर बच्चा लोग ध्यान रखना 4 हमारा सीरीज का पार्ट नहीं है, तो 4 को अलग कर दो, तो बचा 1 3 5 7 9 इज अवर एपी। और मुझे अगर इस पूरी सीरीज का 70th टर्म पूछ रहा है तो मैं बोलूंगा 69 टर्म ऑफ दिस एपी। तो ये क्या हो जाएगा, ए है हमारा 1 प्लस एन 69 - 1 इंटू डी इज 2, तो दिस इज 1 प्लस 68 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 134, ठीक है, नहीं 136। तो हमारी इस सीरीज की जिसका एन टर्म आपको दे रखा है, इसकी 17 टर्म हो जाएगी 137, राइट। तो ये आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। मतलब आप जब S1 S2 S3 निकाल लोगे तो आप ये चेक करो कि क्या वो हमारे पास पैटर्न कौन सी पार्ट से पैटर्न बन रहा है। यहां पर फर्स्ट टर्म छोड़ने के बाद से मेरी एपी बन रही थी, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, this is also a very good question of arithmetic progression. A man arranges to pay off a debt of rupees 3600 by 40 annual installment which are in AP. When 30 of the installment are paid, he dies, leaving 1/3 of the debt unpaid. The value of the 8th installment. मजा तब आता है पढ़ने का जब आप इस वीडियो को यहां पर पॉज कर देते हो और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करते हो। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या करना चाहिए। इट सेज दैट, ये क्वेश्चन क्या कहता है, इस प्रश्न में हमारे पास, इस क्वेश्चन में हमारे पास 3600 को हमें 40 एनुअल इंस्टॉलमेंट एपी में देना है। तो मान लो उसकी फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो सम ऑफ 40 टर्म्स इन एपी इज 3600, यही तो कहना चाह रहा है। और दूसरी बात ये कहना चाहता है कि व्हेन ही पे
व्हेन 30 ऑफ द इंस्टॉलमेंट आर पेड ही डाइज लीविंग 1/3 ऑफ द डेप्ट अनपेड। अब इसका बात का मतलब क्या है, 30 इंस्टॉलमेंट देने के बाद भी 1/3 डेप्ट अभी भी अनपेड है। इसका मतलब 30 इंस्टॉलमेंट तक उसने 2/3 डेप्ट पे कर दिया। सो वी कैन से दैट एज 30 विल बी 3600 का 2/3, 3 से डिवाइड करो 1200 इंटू 2 करो 2400। इट मींस कि अगर वो ये कह रहा है कि 30 इंस्टॉलमेंट के बाद उसका 1/3 डेप्ट अभी बचा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 30 टर्म्स तक ही पेड 2/3 ऑफ द डेप्ट। तो हमारे पास 40 टर्म का सम आ गया 3600, 30 टर्म्स का आ गया सम 2400। यूजिंग दीज टू स्टेटमेंट, दीज टू कंडीशन, वी कैन कैलकुलेट इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब इन दोनों स्टेटमेंट से हम कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म बहुत इजीली निकाल लेंगे। चलो निकाल लेते हैं। तो मैंने बोला था कि हमने मान लेना है कि भाई इसकी फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो सम का फॉर्मूला, अच्छा यहां पर हम लगाएंगे ए और एन वाला फॉर्मूला, 40/2 2a प्लस 39 इंटू डी इज इक्वल 3600, है ना। ये 20 बार और ये काट लो इससे, तो ये जाएगा 2a प्लस 39d इज इक्वल 180। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट इन दिस पार्ट, यहां पर क्या होगा, 30 है ना, तो 30/2 2a प्लस 29d इज इक्वल 2400, है ना। ये हो गया 15 से, और ये हो जाएगा 2a प्लस 29d विल बी 15 और 60, 160। दिस इज इक्वेशन 2। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इज 2a प्लस 39d 180 और 2a प्लस 29d 160। अब आप क्या करो, इस इक्वेशन को यहां से सब्ट्रैक्ट कर लो। 2a प्लस 29d इज इक्वल 160, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस माइनस, दिस विल बी 10d विल बी 20, तो d विल बी 2। नाउ मेरे पास d आ गया। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ d इन एनी ऑफ द इक्वेशन, मानो यहां पुट कर लेते हैं हम, 2a प्लस 29 58 इज इक्वल 160, तो 2a विल बी 102, a विल बी 51। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, मतलब वो पहली टर्म जो पहली किस्त पे करता है, वो पहली इंस्टॉलमेंट जब पे करता है तो ही विल पे 51 रुपीज। उसके बाद वो हर बार 2 रुपए बढ़ाता है, मतलब 51, फिर 53, देन 55 एंड सो ऑन। वो किस तरह से पे करता है, ही विल पे इन अ मैनर कि वो पहली बार में 51 पे करेगा, उसके बाद 53 पे करेगा, फिर 55 एंड सो ऑन, यही तो करेगा, ऐसे तो करेगा। अब हमसे पूछ रहा है बताइए द वैल्यू ऑफ द 8th इंस्टॉलमेंट, तो ये हमारे पास एक एपी बन गई, दिस इज 1 एपी विद फर्स्ट टर्म 51, कॉमन डिफरेंस 2। मुझे पूछ रहा है बताइए 8th टर्म क्या होगी, 8th टर्म विल बी 51 प्लस 7 इंटू 2, तो 51 प्लस 14 65 विल बी द 8th टर्म। आंसर हो गया इसका सी ऑप्शन, राइट। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी ऑप्शन, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट एक और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आता है। नाउ मैं आपको ना हर तरह के क्वेश्चंस यूज कर रहा हूं कि किस तरह के क्वेश्चन आता है, और याद रखिएगा अभी मेरी 1 या 2 क्लास और होंगी, फिर मैं आपको पिछले 7-8 ईयर्स में एपी पर कैट में जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे डिस्कस करूंगा। मैं कैट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे डिस्कस करूंगा। फर्स्ट आई विल कवर इंटायर एपी कॉन्सेप्ट। अब जरा इस क्वेश्चन को समझिए आप, यहां पर क्या बोल रहा है, इट सेज दैट द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 105 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 15 टर्म इज 780। अब यहां पर ये जो नेक्स्ट 15 टर्म्स का जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप कैसे डील करोगे। देखो, जब हमें बात कर रहा है कि सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ एपी इज 105 एंड सम ऑफ नेक्स्ट 15 टर्म्स, तो जब नेक्स्ट 15 टर्म की बात करेंगे तो याद रखना उसमें कॉमन डिफरेंस तो सेम रहेगा, मतलब पहले 15 और अगले 15 में कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। चेंज क्या होगा, जब मैं अगले 15 की बात करूंगा तो फर्स्ट टर्म चेंज हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूं, देखो ध्यान समझना, मैं इस क्वेश्चन को जल्दी करूंगा और आपको समझा रहा हूं उसमें, T1 T2 T3 so on T14 T15 T16 T17 and so on T30। तो दिस क्वेश्चन इज सेइंग कि यार T1 से लेकर T15 सम ऑफ टर्म्स कितना है बच्चा, आप कहोगे सर 105, और यहां पर वो बोलेगा सम ऑफ नेक्स्ट 15 इट इज 780। तो नॉर्मल देखा जाए तो क्वेश्चन आसान है, बट एक छोटी सी बात यहां पे समझना है,
व्हेन वी कंसीडर नेक्स्ट 15 टर्म्स, इन दैट केस हमारा कॉमन डिफरेंस तो उसी सीरीज का होगा, लेकिन यहां पर फर्स्ट टर्म ये बन जाएगी, इधर फर्स्ट टर्म ये है। तो अगर मैं इन दोनों को अलग अलग लूंगा तो मुझे फर्स्ट टर्म की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बट अगर मैं ऐसा कर दूं कि मैं इस लाइन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करता हूं, आई कैन से कि यार यहां से यहां तक पूरा अगर मैं लेता हूं तो वी कैन से सम ऑफ 30 टर्म्स एंड इट विल बी 105 और 780 जोड़ लो 885। तो अब मेरे पास क्या हुआ, एक मेरे पास कंडीशन हो गई ये वाली, एक मेरे पास कंडीशन हो गई ये वाली और एक ये वाली हो गई। अब इससे फायदा क्या हुआ, इस तरह से सोचने से हमें मिला क्या, इस तरह से सोचने से हमको ये मिला कि इस सीरीज का भी फर्स्ट टर्म ए हो गया, कॉमन डिफरेंस डी हो गया, इस सीरीज का भी फर्स्ट टर्म ए हो गया, कॉमन डिफरेंस डी हो गया। तो हमें अब 16 टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपको ये बनानी पड़ेगी कि अगर आपको नेक्स्ट बोला हुआ है तो आप दोनों सम को जोड़ दो और टर्म भी जोड़ दो, 15 मतलब 30 टर्म हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया, वी कैन से कि भाई सम ऑफ 30 टर्म्स इज इक्वल 30/2 2a प्लस 29d इज इक्वल 885। राइट, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी। 15 से काटो, 15 से काटो ये जाएगा 15 से कितनी बार 5 बार, बचा 135 9 टाइम। तो मेरे पास हो गया, मेरे पास यहां से हो गया 2a प्लस 29d इज इक्वल 59। दिस इज इक्वेशन 1। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी, वी कैन से कि यार सम ऑफ 15 टर्म इज 15/2 2a प्लस 14d इज इक्वल 105। अब जो कट सकता है काटो, देखो 15 से ये कटेगा 7 बार और 2 से ये कटेगा 1 बार, 2 से 7 बार। तो मेरे पास हो गया a प्लस 7d इज इक्वल 7। दिस इज इक्वेशन 2। अब मुझे a और d सॉल्व करना है, ठीक है, और मुझे d निकालना है। तो आप सीधे सीधे a सॉल्व कर लो। फॉर दैट हम फर्स्ट इक्वेशन तो लिखते हैं एज इट इज, 2a प्लस 29d इज इक्वल 59। इस इक्वेशन को आप डबल कर लो, बिकॉज यहां पर a है, इधर 2a है, इसको डबल करो, 2a प्लस 14d इज इक्वल 14। नाउ सब्ट्रैक्ट करो, ये माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, दिस इज 15d 45। तो d का मान हो गया 3। नाउ दिस इज गुड क्वेश्चन। आपको बस ये ध्यान रखना है, नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट में आप दोनों को जोड़ लेते हो। आप लोग मुझे बताइए कमेंट में लिख के कि आपको ये बातें कितनी समझ में आ रही हैं, राइट, कितना आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो रही है। क्योंकि देखो एपी में फॉर्मूले केवल 2 ही होते हैं, दो, एक एन टर्म का फॉर्मूला, एक सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला, बट उसकी एप्लीकेशन देख लो ना किस तरह क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं आपको हर तरह क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। एक क्वेश्चन में कैट 17 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं एंड दिस इज ए टीटा क्वेश्चन। अब टीटा आप जानते होंगे, कैट में टाइप इन द आंसर आता है, मतलब वहां पे ब्लैंक स्पेस होता है जिसमें आपको वैल्यू लिखनी होती है। याद रखना, टीटा के बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि पहली बात तो टीटा का जो आंसर होता है वो होल नंबर आंसर होता है, ठीक है, होल नंबर नेचुरल नंबर आंसर होता है। दूसरी बात, टीटा में आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट क्वेश्चन मजेदार होते हैं। अच्छा, टीटा क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से करना है तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अच्छा आपको पता होगा कि आउट ऑफ 22 क्वेश्चन पिछले 4 साल से 8 क्वेश्चन टीटा के आ रहे हैं। मतलब आपको अगर कैट क्लियर करना है तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत इंप्रूव होने चाहिए। विदाउट इंप्रूविंग ऑल द कॉन्सेप्ट आप इन क्वेश्चन को पूरा सही कर ही नहीं पाओगे। अच्छा, नाउ इट सेज लेट a1 a2 a3 a4 a5 बी ए सीक्वेंस ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर। तो याद रखना, कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर कैसे चलते हैं। मान लो पहला ऑड नंबर x है तो दूसरा ऑड नंबर होगा x+2, फिर x+4, x+6 एंड x+8, इस तरह चलेगा। अब x का वैल्यू अगर माना 17 होता तो अगला होता 19, 21, 23, 25 एंड सो ऑन। तो x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। याद रखिएगा, ऑड नंबर टर्म्स, अगर मेरे पास पहली ऑड नंबर टर्म्स आ गई तो मैं उसमें 2-2 ऐड करूंगा, मुझे नेक्स्ट ऑड नंबर ऑफ ऑड टर्म्स मिलती जाएंगी, राइट। अच्छा, मेरे पास क्या बोल रहा है कि मेरे पास a1 a2 a3 a4 a5 बी सीक्वेंस ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स एंड कंसीडर ए न्यू सीक्वेंस ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स एंडिंग विद 2a3। तो याद रखिए, ये जो मेरे पास 5 इवन नंबर है वो एंड करती है 2a3 से। तो अगर ये लास्ट है तो उससे पहले वाली क्या होगी। तो याद रखिए, इवन नंबर ऑफ टर्म्स में भी 2-2 का इंक्रीज या डिक्रीज होता है। अगर मुझे
लास्ट टर्म गिवन है तो इससे पहली टर्म क्या होगी, 2 कम करके आएगी। जैसे मैं कहता हूं 16 है, इससे पहले का टर्म होगी 14, बिकॉज मुझे बैक करना है, बिकॉज दिस 2a3 इज द लास्ट टर्म ऑफ दैट इवन नंबर सीरीज। तो मुझसे बोल रहा है कि 5 इवन नंबर्स हैं जिसका लास्ट टर्म है 2a3, तो इससे प्रीवियस टर्म क्या होगा, आप बोलोगे सर 2a3 माइनस 2, इससे पिछला टर्म क्या होगा 2a3 माइनस 4, इससे पिछला टर्म होगा 2a3 माइनस 6 एंड इससे पिछला टर्म होगा 2a3 माइनस 8। अच्छा, इनका सम बोल रहा है कितना, 450। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, इनको ऐड करना है। तो मैं लिखूंगा 2a3 माइनस 8, 2a3 माइनस 6, 2a3 माइनस 4, 2a3 माइनस 2 प्लस 2a3, दिस इज 450, राइट। 1 2 3 4 5, तो 10a3। अच्छा, माइनस 8 2 10, 6 4 10, तो माइनस 20 इज इक्वल 450। तो a3 10a3 विल बी 470, a3 वैल्यू विल बी 47। तो मेरे पास a3 47 आ गया। हमसे पूछ क्या रहा है, इट इज आस्किंग फॉर a5। अच्छा, हमारे पास a1 a2 a3 a4 a5 ये ऑड नंबर थे, a3 मेरे पास आ गया 47, तो a4 क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है तो 47 में 2 जोड़ो 49, ये हो गया 51। तो मेरा आंसर हो गया 51। दिस इज ए थीटा क्वेश्चन, सो वी विल राइट 51 इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो ये हो गया मेरा एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कितना मजेदार क्वेश्चन है। इट सेज दैट इफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर p है, p प्लस 3q है, 4p प्लस q है एंड 32, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 टर्म। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको वर्क करने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपको करने चाहिए। अच्छा, बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आपको एक बात और पता होनी चाहिए। मान लो किसी सीरीज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3 टर्म्स आर गिवन, ए बी सी आर इन एपी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो आपको पता होना चाहिए, अगर मुझे 3 टर्म्स एपी में दी हैं, मतलब एबीसी के बारे में बोला है कि एपी में, तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, राइट। अगर कुछ टर्म्स एपी में तो मैं क्या करूंगा, कॉमन डिफरेंस सेम, मतलब एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो अगर मैं बी की बात करता हूं, बी माइनस ए विल बी द कॉमन टर्म, कॉमन डिफरेंस। अच्छा, उसी तरह से दिस इज ऑल्सो इक्वल टू सी माइनस बी। अब बी इधर ले आओ, ए इधर ले जाओ, तो ये जाएगा 2b बराबर a प्लस सी। अब इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न में, क्वेश्चंस में आपको 3 टर्म एपी के बारे में होता है या 3 टर्म में कुछ अननोन होता है जिनको हमें सॉल्व करना होता है। नाउ इट इज गिवन दैट दिस इज एबीसी इन एपी, तो मिडिल का ट्वाइस याद रखना। कैसे इसको याद रखना है, मतलब हर बार थोड़ी बनाओगे आप। अगर 3 नंबर एपी में दिए होते हैं तो मिडिल का डबल इज इक्वल सम ऑफ टू एक्सट्रीम। तो मैं कह सकता हूं डबल ऑफ मिडिल इज इक्वल सम ऑफ 2 एक्सट्रीम। ये कंडीशन कब होगी, जब ये एपी की बात हो रही होगी। सम ऑफ 2 एक्सट्रीम, जब एपी की बात होगी तो 3 नंबर एपी में होगा तो डबल ऑफ मिडिल इज इक्वल सम ऑफ 2 एक्सट्रीम। अब इस बात को हम यहां पर अप्लाई करते हैं। देखो, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। अगर मैं इन 3 टर्म को देखता हूं तो इसका डबल ट्वाइस ऑफ p प्लस 3q इज इक्वल सम ऑफ 2 एक्सट्रीम, p प्लस 4p प्लस q। अच्छा, इसको तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2p प्लस 6q 5p प्लस q। अच्छा, अब 2p इधर, q इधर आ जाएगा, तो इट विल बी 5q इज इक्वल 3p, राइट। यहां से p बाई q का वैल्यू आ गया 3/5, राइट। अब आप क्या काम करो कि इसमें ना p को मान लो 3a और q को मान लो 5a। मेरे पास p और q का रेशियो आ गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 3a एंड 5a, p और q की वैल्यू पुट करके देखो क्या बन जाता है। नाउ इट विल बी, अब मैं क्या करता हूं, देखो मैं p की जगह 3a रखूंगा तो ये हो जाएगा 3a। यहां पर देखो 5 3 जा 15 प्लस 3 18a,
अच्छा ये उल्टा हो गया यार, ये उल्टा हो गया, देखो ये उल्टा हो गया। यहां पर क्या होगा, 5/3 होगा, क्यू नीचे, हाँ 5/3, तो P का वैल्यू हो जाएगा 5A और Q का हो जाएगा 3A। चलो अभी सही कर लेते हैं यहां पर। तो P का वैल्यू 5A, अच्छा 3Q, 3 3 9 प्लस 5 14A, इधर 4P 20 प्लस 3 23A एंड 32। अब मेरे पास कुछ ऐसा फिगर आ गया, राइट। अब इसमें से मुझे A कैलकुलेट करना है, मुझे A निकालना होगा। अच्छा आप X भी मान सकते हो, आप X मान सकते हो, ऐसा करते हैं इसको X मान लेते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पर हम X मान लेते हैं, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये A तो हम फर्स्ट टर्म मानते हैं, तो मैंने मान लिया कि भाई ये 5x है, ये 3x है, तो यहां पर हो जाएगा 5x 14x 23x। अब इसमें से मुझे x निकालना है। देखो कई तरीके हो सकते हैं, हमारे पास 5x फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म है ना, और अगर मैं इन तीनों टर्म को देखता हूं तो ये 3 टर्म भी तो एपी में होंगी, ये 3 टर्म भी तो एपी में होंगी। तो अगर ये 3 टर्म एपी में होगी तो मिडिल का डबल मतलब ट्वाइस इंटू 23x बराबर सम ऑफ 2x 3 प्लस 32, ये हो गया 2 32 46, 46x माइनस 14x बराबर 32, तो 32x बराबर 32, x का मान हो गया 1। अब हमारे पास x 1 आ गया, तो मेरी सीरीज क्या बन गई, मेरी सीरीज हो जाएगी, देखो x का मान रख दो 1 5 14 23 एंड 32, दिस इज माई सीरीज। अब यहां पर a कितना आ गया बच्चा, a आ गया 5, कॉमन डिफरेंस आ गया 9। मुझे पूछ क्या रहा है इस प्रश्न में, इट इज आस्किंग फॉर 100 टर्म, तो t100 a5 प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू डी, तो 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 891 प्लस 5 इट विल बी 896। हमारी 100 टर्म सीरीज की होगी 896, बी इज द आंसर। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में लिखकर कि कितने बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर पाए, राइट। देयर आर सेवरल अदर मेथड्स, बट मैं आपको बेसिक इंप्रूव कर रहा हूं, आगे मैं भी आपको एग्जाम क्वेश्चंस भी कराऊंगा तो वहां पर हम इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी भी कर सकते हैं, बट दिस इज द फर्स्ट इंप्रेशन कि आपको इस तरह से करना चाहिए। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, द मिनिमम सम पॉसिबल सम फॉर द सीरीज -55 -51 -47। अब आप जरा इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए और फिर देखो कि तुम इस क्वेश्चन में अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए या नहीं। क्या आप इस क्वेश्चन को विदाउट माई हेल्प अपने आप समझ पा रहे हो? ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। पहले इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, देखो कॉन्सेप्ट, देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैं लेता हूं -20 -15 -10 -5 0 +5 10। आपको क्या दिख रहा है कि एक एपी चल रही है जिसमें कि कॉमन डिफरेंस +5 है, तो -20 में +5 करोगे -15, -15 में +5 करोगे -10, -10 में +5 -5 एंड सो ऑन। अच्छा अगर मैं यहां तक सम देखता हूं इनका, यहां तक तो -20 -15 -10 -5 इनका सम कितना हो जाएगा, -50। तो ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। अच्छा अगर मैं लेता हूं यहां तक का सम, यहां तक का, तो यहां पर आप देख रहे होगे कि इसके बाद प्लस टर्म आ गई, तो जब प्लस टर्म आएगी तो सम घटना स्टार्ट होगा। सम ऑफ 7 विल बी -45, और आगे बढ़ोगे तो सम और कम होगा और बढ़ेगा। दिस इज द मिनिमम सम, दिस इज द मिनिमम सम। उसके बाद देखो सम बढ़ना स्टार्ट हो गया, -50 -45। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैं कहता हूं माइनस आपसे -11 -8 -5 -2 1 4 एंड सो ऑन। ये एक एपी चल रही है जिसमें कि मेरे पास कॉमन डिफरेंस +3 है और फर्स्ट टर्म -11 है। इसका सम देखते हैं जरा। अगर मैं यहां तक का सम करता हूं, इफ आई कंसीडर सम ऑफ फोर्थ टर्म, तो 11 -26। अगर मैं सम ऑफ 5 टर्म लेता हूं तो -26 + 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा -25। अगर मैं सम ऑफ 6 टर्म करता हूं -25 + 4 -21, तो आप देख रहे हो दिस विल बी द मिनिमम सम, दिस विल बी द मिनिमम सम।
तो अब आपको इस टॉपिक में, इस कॉन्सेप्ट में या इस क्वेश्चन में क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्या अंडरस्टैंडिंग आपको बननी चाहिए? अंडरस्टैंडिंग ये बननी चाहिए कि अगर मेरे पास किसी सीरीज में नेगेटिव से टर्म स्टार्ट होती है, अगर मेरे पास किसी सीरीज में नेगेटिव से टर्म स्टार्ट होती है और वो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आपकी पॉजिटिव टर्म आ जाएगी। तो जहां पर पॉजिटिव टर्म आ रही है, जहां पर भी पॉजिटिव टर्म आ रही है, उससे पहले के जितने भी वैल्यू होंगी, जितनी भी नेगेटिव टर्म होगी, उनका सम हमेशा मिनिमम आएगा उतनी सारी टर्म्स का। जैसे हम पहली पॉजिटिव टर्म स्टार्ट करेंगे जोड़ना, तो मेरा सम क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां आपसे पूछ रहा है मिनिमम सम पॉसिबल, तो मिनिमम सम पॉसिबल का केवल एक कॉन्सेप्ट होगा, हमारी सीरीज जो है -55, -51, -47, आपको दिख रहा है कि ये नेगेटिव है और यहां पर कॉमन डिफरेंस प्लस का 4 है। तो कोई एक स्टेज आएगी जहां पर कि हमारी पहली, देखो मान लेते हैं यहां पर टी, ये हमारी फर्स्ट, बल्कि मैं कहता हूं टी लास्ट नेगेटिव टर्म, उसके बाद पॉजिटिव टर्म स्टार्ट हो जाएगी। तो हम जहां तक हमारी लास्ट नेगेटिव टर्म आ रही है वहां तक हम इसको ऐड करेंगे, वहां तक ऐड करेंगे तो हमें मिनिमम सम मिलेगा। अब जो हमारा मेन एम इस क्वेश्चन में बन जाता है वो ये बनता है कि हम ये ढूंढेंगे इस क्वेश्चन में हमारी पहली पॉजिटिव टर्म कहां से होगी या इसकी लास्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, इसकी लास्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। तो सिंपल सी बात है, लेट्स से एनी टर्म इज इट्स लास्ट नेगेटिव टर्म, इट शुड बी लेस देन 0। नेगेटिव के लिए हम लेस देन 0 कर देंगे। अच्छा, tn -55 प्लस n-1 इंटू 4 लेस देन 0, 4 मेरा कॉमन डिफरेंस है। अच्छा, यहां पे गड़बड़ मत कर देना, कोई भी सीरीज में कॉमन डिफरेंस निकालना तो कोई भी टर्म प्रीवियस टर्म से माइनस करो। मतलब अगर मैं डी की बात करूंगा तो -51 माइनस -55 इट विल बी 4, ये गलती मत कर देना, इसका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव 4 आ रहा है। अच्छा, -55 दिस साइड, n-1 इंटू 4 प्लस 55, n-1 इज लेस देन 55/4 और 13.75, तो n लेस देन 14.75। अब जरा इस बात को समझना, n जो है 14.75 से कम होगा तो वो नेगेटिव टर्म रहेंगी, उसके बाद अगर उससे बढ़ जाएगा तो पॉजिटिव टर्म होगी। इसका मतलब यहां पर जो मैंने लिखा है ना, ये बात समझना आपको, बस ये बात समझ गए तो आपका ये क्वेश्चन आसान होगा। देखो जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो एक कहीं 14 टर्म होगी, एक कहीं 15 टर्म होगी, तो इसके बीच से इससे छोटी टर्म्स हमारी ऑल नेगेटिव टर्म होगी। 15वीं टर्म जो होगी वो फर्स्ट पॉजिटिव टर्म होगी। आप लिख के देखना, पूरा लिखना 14 टर्म तक, तो 15 टर्म हमारी फर्स्ट पॉजिटिव टर्म आ जाएगी। इसका मतलब हम इस प्रश्न में हम मान लेंगे कि भाई n का वैल्यू होगा 14, इसका मतलब फॉर मिनिमम सम, फॉर मिनिमम सम वी विल टेक n एज 14। बस आप इस सीरीज का 14 टर्म का सम निकाल लो। तो सम ऑफ 14 टर्म्स, 14/2, 2 इंटू -55 प्लस 14, 13 इंटू 4, ये हो गया 7। तो 7 इंटू -110 प्लस 52, तो 7 इंटू -58, 7 8 जा 56 -406। तो इस सीरीज का मिनिमम सम जो होगा वो 406 होगा। नेगेटिव का आंसर विल बी बी ऑप्शन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको मैं हर क्वेश्चन में एक नई चीज सिखा रहा हूं। अभी हम लोग मिक्स कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। अब हर क्वेश्चन आपको एक नया चैलेंज होगा, नया कॉन्सेप्ट होगा। यस, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में लिख के कि आपको ये चीजें कितना हेल्प कर रही हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नो, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ये भी बहुत बढ़िया, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है ये वाला। हमको बोल रहा है इन दिस केस वी आर गिवन विद ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में कुछ कह रहा है। इट इज सेइंग कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी इज ऑड। अच्छा, ऑड टर्म का मतलब क्या होता है? अब जरा ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का समझ लो। अगर किसी सीरीज में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो हम नंबर ऑफ टर्म्स मानते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा मानते हैं 2n+1। मतलब क्या इस बात का कि भाई हमारी सीरीज हो गई
T1, T2, T3 ये ऑड टर्म्स हैं। T1, T2, T3, T4, T5 ये भी ऑड टर्म्स हैं, 5 टर्म है। या T1, T2, T3, T4, T5, T6 और T7 ये भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अब आपने अगर क्वेश्चन थोड़ा पढ़ा होगा आगे, द सम ऑफ ऑल द इवन प्लेस टर्म is 7 and the sum of all odd place term is 8.75. It is also given that the last term of this AP is exceed the first term by 2. अच्छा, तो पहले हम ये सीखेंगे इस क्वेश्चन में कि यार ये कॉन्सेप्ट क्या होता है ऑड प्लेस टर्म और इवन प्लेस टर्म का, ये क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो देखो बच्चा, इस वाली पार्ट में अगर मैं देखता हूं यहां पर ये इवन टर्म है, मैं इवन टर्म को सर्किल कर रहा हूं, यहां पर इवन टर्म है, ठीक है, और यहां पर इवन टर्म है। ये जो मैंने सर्किल किया रेड से, ये इवन टर्म शो कर रहा है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस वाली सीरीज में, पहली सीरीज में 3 टर्म में 1 इवन टर्म थी, 5 टर्म में 2 इवन टर्म थी और 7 टर्म में 3 इवन टर्म थी। इसका मतलब अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो इवन टर्म्स ऑड से 1 कम होती है। मतलब यहां पर 1 इवन टर्म, 2 ऑड टर्म, यहां पर 2 इवन टर्म और 3 ऑड टर्म, यहां पर 3 इवन टर्म, 4 ऑड टर्म। तो अगर मैंने 2n+1 माना है तो ध्यान समझना, तो यहां पर ऑड टर्म्स कितनी होंगी, ऑड टर्म्स होंगी n+1 और इवन टर्म्स होंगी n। ये आपको बात ढंग से समझनी है कि भाई अगर मेरे पास किसी सीरीज में टोटल टर्म्स ऑड हैं तो इवन टर्म 1 कम होगी, ऑड टर्म 1 ज्यादा होगी। मतलब अगर मैंने 2n+1 टर्म्स माना है तो मेरे पास ऑड टर्म्स होंगी n+1, इवन टर्म्स होंगी n। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर मैं किसी एपी का इवन टर्म अलग करता हूं और ऑड टर्म अलग करता हूं, तो अगर मैं अपनी एपी मानता हूं कुछ ऐसे, जरा ध्यान देना, T1, T2, T3, T4 अप टू सो ऑन T2n+1, मैंने ऐसा माना है कुछ, ठीक है। अब अगर ये A है, ये A+D होगा, ये A+2D होगा, ये A+3D होगा एंड सो ऑन। अगर मैं इवन टर्म की बात करता हूं, इवन टर्म, तो याद रखिए यहां पर फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा, देखो ये T2 हमारी इवन नंबर, इवन प्लेस की टर्म है, इसका फर्स्ट टर्म हो गया A+D। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉमन डिफरेंस ये होगा। देखो अगर एक ये हमारी इवन टर्म है तो अगली होगी A+3D, तो यहां पर A+3 में से A+D घटाओगे तो आ जाएगा 2D। ये 2 बातें अगर आप समझ गए तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया। अगर ये 2 बातें आप समझो तो क्वेश्चन आसान हो गया। अगर इवन टर्म की बात करते हो, अगर सीरीज मेरी A से स्टार्ट है तो अगली टर्म A+D होगी, तो इवन टर्म में फर्स्ट टर्म A+D होगी और कॉमन डिफरेंस 2D का होगा। हमको बोला है सम ऑफ इवन प्लेस टर्म इज 7, इसका सम देखो n/2, नंबर ऑफ टर्म्स भी लिख देता हूं मैं यहां पर, आपको एक चीज लिख देता हूं, नंबर ऑफ टर्म्स मैंने मानी थी 2n+1, यहां पर मान लेते हैं टोटल टर्म्स हम मान लेते हैं 2n+1, ठीक है। तो अगर टोटल टर्म्स 2n+1 है तो इवन टर्म होंगी n, इनका सम n/2 2a+d, तो 2a+2d प्लस n-1 इंटू 2d बराबर 7। अब देखो बच्चा, A2 ये 2 से कट गया तो मेरे पास बचा क्या, n A+D प्लस ND-D बराबर 7, तो D कट गया। तो मेरे पास यहां से क्या आ गया, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं हल्का सा, मेरे पास आ गया n इंटू A प्लस ND बराबर 7, इक्वेशन 1। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन जब मैंने इवन टर्म्स कंसीडर किया। नाउ वी विल कंसीडर ऑड टर्म्स। अब हम ले रहे हैं ऑड टर्म्स। तो देखो बच्चा, ऑड टर्म में फर्स्ट टर्म कितनी होगी, देखो पहली टर्म T1 ये ऑड प्लेस की टर्म है तो ये तो A ही हो जाएगी। इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा बच्चा, वो होगा 2D। कॉमन डिफरेंस इसका भी 2D ही होने वाला है, इसका कॉमन डिफरेंस भी 2D ही होगा। अगर मैं ये देखता हूं T1 ये T3, इनका कॉमन डिफरेंस 2D ही होने वाला है। अच्छा, सम ऑफ n+1 टर्म्स, सम कितना होगा n+1/2, क्योंकि अगर इवन टर्म n है तो ऑड टर्म होंगे n+1,
सम ऑफ टर्म विल बी n+1 और 2a प्लस एन डी। देखो n+1 -1 करोगे 1 1 कट जाएगा, ये n इंटू 2d आ जाएगा बराबर 8.75। तो देखो 2 2 काट दो, ये हो गया n+1 इंटू a प्लस एन डी बराबर 8.75। दिस इज इक्वेशन 2। अब आपको क्या दिख रहा है, हो गया क्वेश्चन हमारा। देखो ये n+1 a प्लस एन डी, इधर n a प्लस एन डी। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को डिवाइड करता हूं, आई विल गेट a प्लस एन डी कैंसिल। तो ये हो जाएगा, डिवाइड कर दो, n इंटू a प्लस एन डी बराबर 7। तो देखो ये a प्लस एन डी कट गया, यहां से आ गया n+1 अपॉन n बराबर, अच्छा ये 7 से काटो 1.2 और 1.25। यहां से क्या आ जाएगा बच्चा, n+1 बराबर 1.25n, n+1 बराबर बल्कि इसको उधर ले आओ, n माइनस 1.2 बल्कि 1 बराबर 1.25n माइनस n, ये हो गया 0.25n। n का मान हो गया 4। अब अगर n का मान 4 हो गया तो हमारा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, इट इज आस्किंग फॉर टोटल टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विच इज 2n+1, तो 9 टर्म्स। आंसर विल बी बी ऑप्शन। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में लिखकर कितने बच्चे इस क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में सही कर पाए थे। नाउ दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, आने लायक है, आ सकता है। तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट देखो, मैं आप जो आपको मिक्स क्लासेस ले रहा हूं, इसमें मैं आपको एडवांस कंडीशंस डिस्कस कर रहा हूं। बहुत बेसिक चीजें होती है, बार बार आप प्रिपेयर करोगे तो आपको ये चीजें अच्छी तरह तैयार हो जाएगी, राइट। अच्छा, मैं आपको हर बार कुछ होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, तो चलो इस बार भी हम होमवर्क क्वेश्चन देंगे। दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन, यू मस्ट अटेम्प्ट। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। होमवर्क क्वेश्चन 1 है, राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, एंड दिस इज होमवर्क क्वेश्चन 2। मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको कराया है, आप लोग इसको ट्राई करिएगा एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप इन क्लासेस को शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनको सभी फ्रेंड सर्किल में आप शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ और अनटच्ड और बड़े मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।